Hi everyone. We have got another topic that is we are talking about going to talk about a bank that is BlackRock. So, if I were to tell you that in a country which institution is one of the strongest and powerful ones, so you might say like the government of any country is the most is the most important institution that make policies, that has the power, that has the legislation, that has the administration in its hand, that has the jurisdiction to invoke their laws in the country. But what if I might say like that there are some uh, banks which on which the government banks on, basically rely on. So there is single bank that is with so there is a bank which I think is particularly, when I read about it, I think it keeps a global power in the whole world, that is BlackRock. So you may have heard about the name of the BlackRock. It is one of the a prominent asset management consultant or company in the whole world, and the CEO of it is Larry Fink. So अगर BlackRock की बात की जाए तो it is the largest asset management bank. So largest asset management में क्या हुआ कि it does not own its own money. It doesn't have its own asset, but it manages its the money the assets of on behalf of other. तो जैसे बॉन्ड्स हो गया, ETF हो गए, गवर्नमेंट सॉवरन वेल्थ फंड हो गया, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट के फंड, बैंक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के फंड, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेशन के फंड। सो बेसिकली इनके फंड्स को जो है ये मैनेज करते हैं। एंड उन फंड्स में क्या-क्या आता है, तो स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, रियल एस्टेट आ गए, ईटीएफ हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फर्म। सो ईटीएफ क्या होता है कि इट इज़ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। तो ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि ये एक एनवाईएसई जो कि वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, उसके ऊपर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जिसमें आप जाके यूनिट्स को परचेज कर सकते हो, और यू विल गेट द यूनिट्स on which the profit on which the interest will be given to you. So ETF ही होता है, just like the mutual fund, if you may say like. तो ये तो आ गया कि BlackRock is very powerful country because company, because it it takes care of around 10 trillion of asset all over the world. 10 trillion though on its balance sheet is shown, but I think in the deep down it might have been, it may have been, it will be, but I think in the behind it will be taking care of around 15 to 20 trillion of economy, as I had read about. So ये वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सो बेसिकली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ अ सिंगल बैंक व्हिच हैज got this much of a might is making the policy, or it how it influences the whole world, and we have to wait and watch how this happens. So सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि there are thousands of company in the whole world in which it has the share holding. तो जितने भी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे आप मान के चलिए एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मीटा हो गया, एनवीडिया हो गया, सऊदी का सबसे बड़ा बैंक हो गया, अरामको हो गया। तो इनके अंदर इसकी शेयर होल्डिंग होती है, और शेयर होल्डिंग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इफ़ एनी कंट्रीज़ इज़ गोइंग टू मेक एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, सो देयर इज़ ऑल you will be knowing that the board of directors meetings happen, in which the policies that the government that the particular company is going to initiate is discussed. Or in that meeting, if the BlackRock, which is the substantial shareholder of that company, thinks that the policy that they are going to allow is going to be detrimental to my interest, so they have got veto power. Veto power particularly means we are denying your decision and we are not accepting it, and we want it to be, this decision want to be dissolved. So basically this is how they influence the company. जैसे कि अगर एप्पल को इन्वेस्टमेंट करना है हमारे कंट्री के अंदर, और ब्लैक रॉक चाहता है कि नहीं, नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो शेयर होल्डर की मीटिंग होगी उसमें वो वीटो पावर, मतलब वोटिंग पावर उसके पास होती है, दे विल डिनाई इट। बेसिकली दे विल से यू डोंट हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट बिकॉज़ आई डोंट थिंक माय इंटरेस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड इन दिस वे इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द एप्पल टू मेक द टू होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो दिस इज हाउ पावरफुल दे आर। और ये पावरफुल इसलिए भी है बिकॉज़ दे डोंट हैव शेयर होल्डिंग इन वन और टू कंट्रीज companies. They have shareholding in major companies of the world. S&P 500 कंपनीज आप ले लीजिए, इनके अंदर इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो गए, इंडिया की कंपनीज हो गए। दे हैव शेयर होल्डिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, क्योंकि 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आप इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इट्स अराउंड 4 ट्रिलियन। जर्मनी, जापान 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन। तो आप सोचिए एक देश की 2 या 3 देश आ जाएंगे इसमें। ओके, तो बेसिकली हाउ दिस इज हाउ दिस मच पावरफुल दे आर।
अब इसके बाद बात करते हैं कि इस तरह के ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन बैंक के साथ इनका मतलब गवर्नमेंट के साथ इनका रिलेशन कैसा होता है? तो गवर्नमेंट के साथ बैंक और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा जो लियाज़न होता है, इट्स ऑलवेज़ गुड बिकॉज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टोटली अफेक्ट्स द बैंक्स एंड द वाइस वर्सा हैपन। तो ब्लैक रॉक समटाइम्स क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि you will be knowing about 2008 depression. Okay, so it was a time of great depression when the inflation in the world was world what we can say world, but in the America was very high. And at that point of time, the government wanted the advice of the BlackRock, to bring back their derailed train on the track. So they help in financial crisis, bond buying programs, कितना bond purchase करना चाहिए, interest और मार्केट को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, है ना? तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीजें ये करवा रहा है, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट इज अलाउड, मतलब इसके पास ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है कि इतनी 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी संभाल पा रहा है, ठीक है? तो इसने बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम है अलादीन। अलादीन, वी कैन प्रोनाउंस इट इन हिंदी, अलादीन। और अलादीन एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसका एल्गोरिदम टोटली न्यूमेरिकल बेस पे है। मतलब हमें किस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए, उससे हमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजें मार्केट को कैलकुलेट कर लेता है। और वो ये इतना बढ़िया और यू नो क्या क्या कहा जैसा फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर है कि पूरी दुनिया डिमांड करती है ये इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। जापान के कुछ कंपनीज इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जर्मनी के कंपनीज ने दे हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन अभी। और ये क्या करता है, इट ट्रैक रिस्क अक्रॉस ग्लोबल मार्केट में क्या रिस्क है, किस शेयर्स को बॉन्ड्स को परचेज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को जो है ये रोज एनालाइज करता है। और हेज फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, इन सबको एनालाइज करता है। लेकिन इसका एक हर चीज़ का एक प्रॉस एंड कॉन्स होता है, तो इसका भी एक कॉन्स है। और वो है कि अगर दुनिया के सारे कंट्री मतलब कंपनीज जो है, अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने लगे, तो अगर आप शेयर मार्केट को पढ़ते हो या जानते हो, तो उसमें एक चीज़ आपको पता होगा कि एक का लॉस दूसरे का गेन होता है और एक का गेन दूसरे का लॉस होता है। तो अगर सारी कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करें, तो वो रिस्क एनालाइज कर लेंगी। जैसे कि कल सुबह अलादीन के सॉफ्टवेयर में आया कि आप एप्पल के शेयर्स को मत परचेज कीजिए, और ये सारी कंपनीज को पता चल गया। तो वो तो डंप कर देंगे अपने उसको, शेयर्स को। और क्या हो जाएगा कि टोटली जो शेयर प्राइस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल का है, वो टोटली इट विल कम एक्सपोनेंशियली एक्सॉर्बिटेंटली डाउन। और इससे क्या होगा, इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द एप्पल कंट्री टू रेज फंड्स इन द मार्केट। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है? अब आपने ये तो जान लिया कि ये कैसे इकोनॉमी को संभालता है, कैसे इसके पास पावर है, लेकिन एक इसकी शैडो इकोनॉमी भी है। शैडो इकोनॉमी क्या होता है कि आप जितना दिखते हो उससे ज़्यादा आप, दिस इज नोन एज शैडो इकोनॉमी। अगर इन लेमन टर्म्स इफ आई टॉक अबाउट, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट you may have heard that BlackRock does this, makes regulation, these kind of things, but they are much more than that. In shadow economy, they don't show things ऑन द फेस, बट दे डू इट बिहाइंड। सो बेसिकली दे क्या करते हैं कि हिडन इन्फ्लुएंस होता है, और इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी टू हैव हिडन इन्फ्लुएंस। एवरी पीपल इन द वर्ल्ड डू समथिंग वेरी प्राइवेटली दैट यू मे नॉट बी नोइंग अबाउट, and that you will not be knowing about, and those kind of things you cannot state that it is a criminal activity. So ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसा है कि किसी भी, जैसे आप पेप्सी पी रहे हैं, ठीक है? उस पेप्सी के अंदर भी शेयर होल्डिंग इनकी है, मतलब उस कंपनी के अंदर भी इनकी शेयर होल्डिंग है। गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको भी ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अब गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब जो बाइडेन की सरकार थी, तो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है कैबिनेट होता है, ठीक है? जिसमें फाइनेंस एडवाइजर होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है, ट्रेड एडवाइजर होता है, और भी बहुत सारे डिफेंस एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है? तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके जो मेजर एडवाइजर्स थे वो ब्लैक रॉक से रिटायर्ड ही थे। तो जब जो बंदे ने ब्लैक रॉक में काम कर रखा है, तो वो कोई भी ऐसी पॉलिसीज लॉबी, और यूएस के अंदर लॉबी सिस्टम चलता है। लॉबी सिस्टम का मतलब कि कोई भी कंपनी किसी भी लॉ मेकर या किसी भी आदमी को पैसे देके बोलेगी कि भाई जाओ यूएस के गवर्नमेंट को बोलो कि मेरे लिए ये करवाए, तो वहां पे ये चीजें वैलिड है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो है वो टिल्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी।
मर्जर्स, डीलर, जितने भी लीडरशिप डिसीजन है उसमें अफेक्ट इन सारी चीज़ों को किया जाता है, तो जिस तरीके से वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। अब क्या ये कंपनी जो इतनी बड़ी है, क्या ये कभी फेल हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये फेल हुई तो पूरा मार्केट जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा, है ना? पेंशन फंड्स और जितने भी फंड्स जो हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के मैनेज होते हैं, वो सब डिस्टेबलाइज़ हो जाएँगे और गवर्नमेंट को जो है स्टेप इन करना पड़ेगा सो दैट इट कुड सस्टेन इट। तो ऐसा कभी होगा नहीं। इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होती है, कैसे? जैसे पॉलिसी मेकर को एडवाइस करते हैं कि भाई ये पॉलिसी बनाओ, आप आप जो है आने वाले टाइम में इन द कमिंग ईयर्स ईवीज विल बी इन द मोर डिमांड, सो बेसिकली दे से दैट यू हैव टू वर्क ऑन ईवीज। से फाइनेंशियल रेगुलेशन थिंकिंग, मार्केट बिहेवियर को करते हैं कि मार्केट कैसे मूव करना चाहिए। जब इनके पास 10 या 15 ट्रिलियन की एसेट ही है तो इनके एक डिसीजन से जो है मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है ना? तो दिस इज हाउ पावरफुल द ब्लैक रॉक इज, and I think I have told you about each and everything and what are the pros and cons this has over the government. So this is how a bank and the government works. I think you may have understood this kind of things. Uh, I think my hair doesn't look like because I'm the na, but leave it apart. So this is how things happen. So thank you very much, ladies and gentlemen.